ওয়েলকাম ব্যাক টু ইটস পম্পা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আজকে আমরা যাত্রা করেছি উদয়পুর থেকে কুম্ভলগড়ের উদ্দেশ্যে। আর কুম্ভলগড় বিখ্যাত কুম্ভলগড় ফোর্টের জন্য। কুম্ভলগড় উদয়পুর থেকে মোটামুটি 90 থেকে 100 কিলোমিটার দূর হবে। এই কুম্ভলগড় ফোর্টটি বানিয়েছিলেন মহারাজা কুম্ভ। আর এখানেই বিখ্যাত রাজা মহারানা প্রতাপের জন্ম হয়েছিল। আর কুম্ভলগড় ফোর্টটি বিখ্যাত আরেকটি কারণে, এই ফোর্টের চারিদিকে যে প্রাচীর আছে সেই প্রাচীরটি এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘতম প্রাচীর, চীনের প্রাচীরের পরেই যার অবস্থান। এই উদয়পুর থেকে কুম্ভলগড়ের রাস্তাটি অতি সুন্দর। পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, অনেকটা মাউন্ট আবুর মতোই লাগবে। আমরা মাউন্ট আবু যাইনি, তবে এই জায়গাটা দেখেছি, অনেকটা মাউন্ট আবুর ফিল আমরা পেয়েছি। তো আমরা এই রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার পরিবেশ খুবই ভালো লাগবে। আর এই কুম্ভলগড় ফোর্ট রাজস্থান রাজ্যের রাজসামাদ জেলায় অবস্থিত। কুম্ভলগড় ফোর্ট ঐতিহাসিকভাবে অনেক বিখ্যাত আর মেওয়ার সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। আর এই বলছিলাম যে রাস্তার নয়নবিরাম দৃশ্য খুব ভালো লাগবে। আমাদের তো এই দৃশ্য খুব ভালো লেগেছিল। তো আমরা প্রায় কুম্ভলগড়ের ফোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখান থেকে আর কিছুটা কুম্ভলগড় ফোর্ট। আর এইটি হচ্ছে কুম্ভলগড়ের প্রথম ফটক। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে কুম্ভলগড় ফোর্ট। দেখুন কত উঁচুতে, কত বিশাল একটি ফোর্ট। এই আমরা আস্তে আস্তে কুম্ভলগড় ফোর্টের ভিতরে প্রবেশ করছি। তো এখান থেকে আমরা টিকিট কেটে নিলাম। এন্ট্রি ফি 40 টাকা, আর ফরেনারদের জন্য খুব সম্ভবত 600 টাকা। আর আমরা গাইড করেছিলাম, আমাদের গাইডের জন্য পড়েছিল 600 টাকা। এখানে গাইড করে নেওয়া ভালো, কারণ গাইড করে নিলে ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বেশি জানতে পারবো। গাইডরা অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু বুঝিয়ে বলবেন। সেই জন্য আমরা একটা ঐতিহাসিক ফোর্ট, ওই জন্য আমরা গাইড করে নিয়েছি। আপনারাও যদি কখনো যান গাইড করে নেবেন, খুব ভালো হবে। এরপর আমরা আস্তে আস্তে গাইডের সাথে ভিতরে ঢুকে যাব। এরপরে গাইডই আপনাদের কাছে সব বলবে, কুম্ভলগড়ের ইতিহাস কীভাবে হয়েছিল, কবে হয়েছিল, সব ডিটেলস উনি বলে দেবেন। তো আপনারা গাইডের কথাটা একটু ভালোভাবে ফলো করবেন, তাইলেই সব বুঝতে পারবেন। আপনারা দেখতে থাকুন। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि थी, जिस जगह आप फोर्ट देखने गए हैं। जैसे मेवाड़ के अंदर ज़्यादातर आपने फोर्ट देखे होंगे, कहीं से दूर से भी देखिए। यानी चित्तौड़गढ़ कभी गए आप? नहीं। चित्तौड़गढ़ कभी जाते देखना 25 से 30 किलोमीटर फोर्ट दिख जाता है, फोर्ट आ गया है। पर ये वाला फोर्ट आपको कहीं से नहीं दिखता है। पूरा इनविजिबल फोर्ट है। फोर्ट की जो हाइट है सी लेवल से 1100 रेस की हाइट है। तो ये फोर्ट कहीं से दिखता है। इसको देखने के लिए जो सामने जो जिप लाइन बना होता है, वहाँ आने बाद ये फोर्ट सीन होता है, बाकी फोर्ट कहीं से नहीं दिखता है। इस फोर्ट के ऊपर 70 बार अटैक भी होते, 17 बार। फिर इस फोर्ट को इसने जीता नहीं था, तो एकमात्र फोर्ट जिसे अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला फोर्ट है कुंभलगढ़ का पार्ट। अब बात करें मेवाड़ को, तो मेवाड़ को पहले राजपूताना के नाम से जाना है। फिर 2 रियासतें होती है, मेवाड़ एंड मारवाड़। तो जो अभी अपन खड़े हैं पूरा मेवाड़ का पार्ट है। जो टेरेस है उधर फ्लैट एरिया मिलेगा, वो पूरा मारवाड़, यानी मेवाड़ और मारवाड़ की भी बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है फोर्ट। अब ये पूरा जो फोर्ट है 15th सेंचुरी महाराणा कुंभा द्वारा इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। अब क्या है कि जो पूरा जो फोर्ट है 3 स्टेप से कवर है। सबसे पहले इस फोर्ट के ऊपर आए थे मौर्यकाल सम्राट के जो अशोक थे, उनके जो पोते होते उनका नाम था राजकुमार संपत्ति। जो सबसे पहले फोर्ट पे वो आए थे। पीछे आप वो टेम्पल देख रहे हैं, वो सारे 2nd सेंचुरी टेम्पल्स हैं। राजकुमार संपत्ति आए थे सारे जैन टेम्पल्स। फिर 15th सेंचुरी कुंभा जी आते हैं, फिर कुंभलगढ़ बसाते हैं। अब ये पूरा जो कुंभलगढ़ जो है, इसका फेमस रीजन भी है। चाइना के बाद 2nd नाम आता है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है। वॉल भी उस गेट से स्टार्ट होता हुआ आगे जाके 13 माउंटेन कवर करते हुए अप डाउन सेक्शन में राउंड, यानी 36 किलोमीटर कंप्लीट इसका राउंड है वॉल का। वॉल भी कहीं से ब्रेक नहीं, कहीं से टूटा नहीं। इस वॉल की आप जोड़े देख सकते हैं यहाँ, यानी 4 वॉल 4 जोड़े एक साथ जोड़ा करते हैं सिक्योरिटी इस वॉल के ऊपर। और जितना बड़ा जो वॉल है, इस वॉल के अंदर ही 360 टेम्पल है। 360 यानी 300 जैन टेम्पल एंड 60 हिंदू टेम्पल है। अब हिंदू टेम्पल में से जो मेन जो टेम्पल है अपना, वो सामने वाला है।
1458 में मारना कुंभा जो शिवलिंग की स्थान नहीं थी, शिवलिंग का जो साइज रखा गया था मारना कुंभा के हाइट के अकॉर्डिंग कि जब भी वो पूजा पाठ करे तो उनको कोई असुविधा ना हो। अभी शिवलिंग का जो साइज है 4.5 फीट का शिवलिंग है और मारना कुंभा की हाइट थी 8.5 फीट, यानी 8.5 फीट के मारना कुंभा थे। तो बेटे बेटे दूध जलाभिषेक कर देते थे। प्लस उनको एक और ऊपर रहती थी आजानुभाव, जिसके हाथ घुटनों से नीचे थे उनको आजानुभाव के नाम से आना है, जो शिवलिंग है जो पूरा भाव में ले लेते। क्या बोले भैया? तो मतलब शिवलिंग छोटा कैसे हो गया? 4.5 फीट है ना, जब 8.5 फीट उनकी साइज थी और 4.5 फीट उनकी शिवलिंग बनाया, तो जब बैठते थे उनकी साइज सिमिलर हो जाती थी, इसलिए दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अभी जाएंगे तो आपको खड़े खड़े चढ़ाना पड़ता है, तो उनके हाइट के अकॉर्डिंग बनाया था उसने। फिर उसके बाद है वो अपना जैन पार्श्वनाथ वो बंद रहता है बीच वाला। फिर इतना बड़ा जो डोम देख रहा है इस पेड़ के पास पीछे वो था अपना वैदिक परिसर यागशाला। 1457 में जब किला लगभग उससे बन गया था तो मारना कुंभा द्वारा यहाँ हवनशाला बनी थी, यागशाला। आर्किटेक्ट ने उसको इस तरह से बनाया कि बाकी तरह से 3 इसके राउंड है, प्लस वेंटिलेशन जालीनुमा ऑप्शन है। देखिए पीछे तो जो टेम्पल ये थे वो ये थे ब्रह्मा विष्णु है, त्रिलोकनाथ के थे, और ये पूजा पाठ के लिखे थे, बाकी दिन बंद रहते हैं। फिर ये पास वाला जो टेम्पल है वहाँ पर ये गणेश टेम्पल है, ये 1 ईयर में एक ही दिन खुलता है, ओनली गणेश चतुर्थी के। फिर ये वाला है लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी का टेम्पल, ये ओपन रहता है। ये 360 टेम्पल में 3 टेम्पल ओपन है। फर्स्ट 3 टेम्पल है, सेकंड लक्ष्मी नारायण है, थर्ड चलेंगे सबसे ओल्डेस्ट पैलेस अपना कुंभा पैलेस, उसके अंदर एक टेम्पल है नवदुर्गा चामुंडा माता मंदिर। अभी आपको यहाँ आने के लिए विजिट करने के लिए टोटल प्रवेश करने के लिए 9 पोल बनाए, पोल यानी गेट, टोटल 9 गेट इस किले के प्रवेश, जिसमें से हमने 2 गेट टॉस निकले। क्योंकि किले का जो फर्स्ट जो गेट है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम था आरेट पोल यानी आरेट गाँव के नाम से रखा था। सेकंड जो गेट था जो भी आप गाड़ी से एंटर हो आए थे, जिसका नाम था हल्ला पोल गेट यानी हल्ला बोल दिया था। थर्ड जो गेट था जो हमने खड़ी चढ़ेली एक हनुमान की प्रतिमा रिजर्व थी, उसका नाम था हनुमान पोल। फोर्थ नंबर का जो गेट था जहाँ से आप टिकट वगैरह अभी अंदर आए थे, जिसका नाम था राम पोल गेट। एक 5 नंबर गेट और बना था राजा के लिए, जब भी राजा जरूर जीत के रानी प्रजा को टाइम मिलना चाहिए सगैर तैयार लिए सरप्राइज देने की, तो राजा घुमा के वहाँ से 5 का उधर बना था विजय पोल गेट। तो 5 गेट कवर यहाँ होते, आगे जाके अपन 4 गेट क्रॉस करेंगे। 4 गेट क्रॉस करवाए उनके लिविंग एरिया में जाएंगे। हर गेट की सेफ्टी थी, यानी एक गेट से दूसरा गेट नहीं देते, इतने डिस्टेंस से बनाया। आई ये जो आप गेट देख रहे हैं ये 6 नंबर गेट है, एक ऋषि मुनि थे उन्हीं के नाम से बना हुआ है भैरव पोल। जिस गेट का सेफ्टी का इस प्रकार है, किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। शाम के वक्त ये इस गेट को बंद कर दिया जाता है। मेन लिविंग एरिया में जाने के लिए मेन गेट यहीं से आउट किया जाता है। इस गेट का सेफ्टी का इस प्रकार है, गेट तो बड़ा दिया है, ऊपर दिया सैनिकों के रूम, यहाँ से सिक्योरिटी वाइज देखा करते थे। जो 7 चीज़ दी है ये एलिफेंट्स के लिए थी, जब भी एलिफेंट इसको अटैक करने के लिए आए तो अटैक ना कर पाए। जब भी इस गेट को ब्रेक कर भी लिया जाता था तो सामने मिलती है दीवार, सीधा प्रवेश द्वार की, वहाँ से मिल रहा है 90 डिग्री। जब उनको पता चलता है इधर चल रहा है अपने को, तो ऊपर उनके लिए वापस था वॉश टावर, तो वहाँ से तीर कमान रेडी रहता है। इस दीवार को बनाने में कितना टाइम लगा? 15 ईयर, 15 साल। मारना कुंभा की तो मारना कुंभा मेवाड़ के अंदर जो गद्दी विराजमान जब उनको बैठा गया था, तो मेवाड़ से उनसे पहले 84 फोर्ट पहले से बने होते हैं। फिर उन्होंने 32 यानी 32 किलो का निर्माण वापस कराया और एक किला ऐसा बनाया जो सिक्योरिटी वाला सेफ्टी होगा, जो ये वाला किला है कुंभल का किला। अब मारना कुंभा ने जब इस किले के बारे में सोचा कि ऐसा भव्य दृश्य से किला बनाना है, जैसे मारना कुंभा को नवरत्न की उपाधि आई थी, वीणा वादक, पेंटिंग, गुड़ आदि माहित है। तो ज़्यादातर जो फोर्ट है उन्होंने बनाए थे। जैसे उनकी आर्किटेक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर आप 180 किलोमीटर जो चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है, जो लिंग वाइज सबसे बड़ा मेवाड़ी कैपिटल जो दी थी, वहाँ पे विक्ट्री विजय स्तंभ बना हुआ है। तो आर्किटेक्ट कुंभा ने इस तरह से करा के वर्तमान के आर्किटेक्ट उसको नहीं बनाते थे। तो आर्किटेक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज था कुंभा जी को। जब इस फोर्ट के बारे में बनाने की आई थी कि इस फोर्ट बनाना है, ऐसा जैसे किला बनाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक आर्किटेक्ट चुना इस किले के लिए, जिसका नाम था मंडन। तो मंडन की देख रेख में सारा फोर्ट बनाया जाता है। अब मंडन को जब मारना कुंभा जो इस किले पे लाया गया था, उसका नाम था इस किले की दीवार बनाने का। यानी मॉर्निंग से लेकर शाम तक किले की दीवार बनाता था। अगले दिन जब वो किले की दीवार देखने के आता तो किले की दीवार गिर जाती थी। यानी इस किले के बारे में बोलते थे दिन में दीवारें बने करती थी और नाइट में दीवार गिर जाती थी। यानी इस किले पे 5-6 हो गया। तो मारना कुंभा मंडन दोनों चिंतित हो गए, किले दीवार बन क्यों नहीं पा रही। जब भी ऐसे मैं कटौर मौजूद हूँ, बार बार किले दीवार बना रहा हूँ, तो बार बार किले दीवार क्यों की थी। तो मारना कुंभा को आदेश दिया गया था कि आप यहाँ लोकल प्रवासी आज विलेज जो बसा हुआ है उनसे मिलकर उनसे पूछ के आए कैसा क्या इस माउंटेन के ऊपर जो इस किले का निर्माण हो रहा है। जब गांव बस्ती विलेज से जब मिला जाता है, जब पूछा जाता है, तो बताते हैं यहाँ पे एक ऋषि मुनि रहते हैं, इनका नाम होता है मेहर बाबा यानी भैरव बाबा भी कहा जाता था। इन पहाड़ों पे रहते थे और सिगरवर भी। ये जो आप देख रहे हैं कि अरावली रेंज है, सबसे बड़ी रेंज कहलाती है अरावली रेंज, जो गुजरात से इटाली दिल्ली तक जाती है। जो ऋषि मुनि रहते कभी इस माउंटेन सामने घूमते रहते थे। तो मारना कुंभा ने कहा ठीक है उनसे बैठ मिलना जाना पड़ेगा। उनसे बैठ जब मिलना उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया इस पहाड़ी के ऊपर एक देवी का प्रकोप है, इस कारण किले का निर्माण हो रहा है। अब इस देवी को खुश करने के लिए, देवी को पसंद करने के लिए एकमात्र उपाय है वो है सौचिक नर बलि, यानी ऐसे इंसान की बलि जो उसकी सम की इच्छा होनी चाहिए, यानी सेम सैक्रिफाइस।
अब ऐसा इंसान भी मिलना मुश्किल था इस मेवाड़ मिट्टी जो इसके लिए बलिदान दे। फिर भी मारना कुंभा ने प्रयास करा। फिर आसपास गांव बस्ती विलेज से पूछा गया कि जो इस बलि के तैयार हो सामने आए, लेकिन ऐसा आदमी कोई मिला नहीं। तो वापस ऋषि मुनि जो भैरव बाबा जो आए थे उन्होंने बोला बलि या सैक्रिफाइस में रहने खुद तैयार हो हिमसेन, पर जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, मेरे बलिदान को तो याद रखें, नहीं तो मैं कितना बड़ा जगह मैं इसके लिए बलिदान नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जब मॉर्निंग के जब टाइम होगा, जब सूर्य उदय होगा, तो उस समय यहाँ पैदल चलना मुश्किल था, पूरा माउंटेन ही था, तो उस समय दौड़ने घोड़े पे थे। तो जब सूर्य उदय होगा, जब पहली मैं पहाड़ी जब चलना प्रारंभ करूंगा, जहाँ मैं फर्स्ट बार रुकूंगा वही मेरे नाम से गेट बनना चाहिए। तो उन्हीं के नाम से आज गेट बना हुआ है भैरव पोल। कुछ दूर मैं चलूंगा, जहाँ सेकंड टाइम रुकूंगा तो सेकंड टाइम आके यहाँ रुकते हैं, जहाँ सेकंड टाइम आके मैं रुकूंगा वहाँ आके मैं शीश काट देना। तो यहाँ के उनका हेड कट करके यहाँ से बिना हेड के 700 मीटर टॉप पे जाके उनकी बॉडी फाल्ट हो जाती, जो किले का सबसे टॉप ही है। तो यहाँ पे उनका हेड ठेकेदार गया था, यहाँ से बिना हेड के फिर भी बॉडी चलती गई थी, 700 मीटर टॉप पे जाके फाल्ट गई, जो किले का सबसे टॉप ही है। जब इस किले का बलिदान जब पूरा होता, फिर किले का निर्माण स्टार्ट गया था 1443 से लेकर 1458 तक। टोटल इस किले को बनाने लगे थे 15 ईयर, 15 साल में फोर्ट बन जाता। यहाँ पर उसका माथा है जी, हेड को यहीं दफना के छोटा सा मंदिर बना दिया गया था। अभी आसपास के लोकल प्रवासी इनको पूजा पाठ के लिए पूजते भी हैं। तो हेड की पूजा यहाँ होती है, बॉडी की पूजा ऊपर टॉप पे होती है। अच्छा, ये किला रिनोवेशन किया है कि पहले से ऐसी ही है? रिनोवेशन भी हुआ है सर, गवर्नमेंट के में हुआ। 1951 में इस किले को गवर्नमेंट ने ले लिया था, 1958 तक पूरा स्क्वाडिंग कर लिया। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं लगभग गवर्नमेंट ने रिनोवेशन किया है इसको, जो जहाँ तक हो सकता है वो वैसे रिनोवेशन करा, बाकी कोई नया कंस्ट्रक्शन निर्माण नहीं किया जाता। इस गेट का नाम है लिंबू पोल गेट। इस गेट का सेपरेट इस प्रकार है कि इसकी चढ़ाई पूरी स्टीप चढ़ाई दी है, खड़ी चढ़ाई दिया। जब भी एलिफेंट इसको अटैक करने आए, गेट को ब्रेक करके पीछे भी आना पड़ता था, रुकने का ऑप्शन सीधे नीचे चले जाते हैं, खड़ी चढ़ाई होने के कारण। अब यहाँ पे मुख्य अटैक हुआ था सब्बात खान के टाइम पे। सब्बात खान वहाँ उस पहाड़ी पे जाके वहाँ जब कैनन फायरिंग करता है, तो आज भी इस गेट के ऊपर निशान दे सकते हैं, ये राउंड नंबर, ये कैनन मार के दीवार कुंभा इतनी सोली बनाई कि दीवार कुछ नहीं हुआ, ओनली ये निशान बन गया टॉप को लेकर। ये राउंड नंबर देख सकते हैं आप। कुंभा को सबसे महान योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यानी टोटल शासन काल में उन्होंने 56 बैटलर 56 युद्ध लड़े थे, गुजरात मालवा काफ़ी सारा मुगलों से लड़े, और एक भी युद्ध ना हारने वाले राजा थे जिनका नाम था मारना कुंभा। यानी काफ़ी युद्ध उन्होंने जीती थी। राज उनका जो समय था इस किले पे बिता था। फिर उनके दो बेटे हुए थे, एक बड़े बेटे का नाम था उदा यानी उदय सिंह प्रथम, सेकंड जो बेटा था जिसका नाम था रायमल। तो मेवाड़ के अंदर अपने कलंग भी बोलते हैं। उस समय जो बड़ा जो बेटा था उदा, उसको यहाँ गद्दी का लालच आ गया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पिताश्री को पहले मार्ग में गद्दी भेजता हूँ। तो इस तरह के जब मारना कुंभा और संध्या काल में लीन थे, तो बड़ा बेटा पीछे जाकर कटार से वार कर देता है। बेटे ने पिता को मारा है, मेवाड़ में सबसे बड़ा कलंग है। तो कलंग रूप में उदा गद्दी बैठता है और मारना कुंभा ही दे देती। फिर भी उदा यहाँ ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाया, उसकी भी एक दिन यहाँ नेचुरल होती। घना जंगल है ही है, बारिश बहुत आती है। बिजली जब बिजली गिरी थी तो बारिश के दिनों में जब उदा एक पेड़ की छांव में रुका होता तो उसको भी बिजली गिरी थी, वह इसकी नेचुरल डेथ हो गई थी। सेकंड बच्चा था रायमल। फिर रायमल के बाद आते हैं मारना सांगा। फिर सांगा के बाद आते हैं विक्रमादित्य एंड उदय सिंह जी दित्य। तो उदय सिंह जी दित्य ऐसे थे, वो बच्चे के अवस्था में थे, शिशु अवस्था में, तो उनको गद्दी में नहीं बिठा पाए। पर चित्तौड़ में एक बनवीर भी था जिसे बोला करते थे दासी पुत्र बनवीर। तो उसको वहाँ गद्दी का लालच आया था। उसने सोचा क्यों ना मैं दोनों भाई को वहीं खत्म करके मेवाड़ गद्दी में चलूँ। तो दोनों भाई को वहाँ चित्तौड़ किले में अगर मार देता तो मेवाड़ का सिचुएशन वहीं खत्म था। तो वहाँ थी वीर शिरोमणि एक पन्ना धाई, जिसको मेट कहते थे। जो धाई माँ इतनी माँ थी उस समय, जो शिक्षा तो करी थी उसका नाम था महाना उदय सिंह जी दित्य। जो उनकी शिक्षा लालन पासन वही करती थी। जब उसको खूब सारा जब पता चला कि बनवीर उदय सिंह जी महाना उदय सिंह जी भी मार देगा, तो उसने अपने बेटा जो था उसका नाम था चंदन, उनको बेड पे सुला देती है और उदय सिंह को लेकर टोपलों में छुपा देती है। जब बनवीर जब तलवार लेके आता है तो पूछता उदय सिंह का है, तो सामने उसा के सामने के बेटे के दो टुकड़े होने के बाद भी नहीं तो रोती ना चिका थी, मार देती थी। जब बनवीर जब चला आता है फिर अपने बेटे को चूमते हुए अपने बेटे को चूमते हुए बेटे के विलाप में रोते हुए मारना उदय सिंह ने चित्तौड़ से निकलती। जब चित्तौड़ से निकलती है मेवाड़ के अंदर चारों तरफ घूमती है, पर उनको कोई सर नहीं देता है। काफी लंबे समय तक घूमते घूमते वो एक दिन इस किले के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ पे किलेदार मिलने वाले थे, तो उनको कहानी सुन के वो बोलते थे मेवाड़ के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, क्यों ना मैं हेल्प करूँ। तो इसी किले में उनको 15 ईयर 15 साल तक छुपा गया था इसी कुमार में जी। 15 साल बीतने के बाद फिर वो नए जैसे बड़े हुए तो आसपास की सेना जो सरदार राजा वगैरह होते थे छोटे बड़े, और उनके नंजार पक्ष को भी बुलाया गया था। तो आसपास के राजा उनको बुला के सच में किया तो यही मारना उदय सिंह जी है। तो उनको राजा की उपाधि दी गई थी। फिर उन्होंने सेना एकत्रित करी, चित्तौड़ में जाके आक्रमण करा और बनवीर को मार गिराया। फिर मेवाड़ के राजा और बन गए मारना उदय सिंह जी। जैसे मेवाड़ के राजा मारना उदय सिंह फिर सोचते क्यों ना मैं आगे दिल्ली से बढ़ाऊँ। तो यहाँ से जोधपुर जाते हैं, जोधपुर में पाली आता है। तो पाली में समझ एक पुत्री हुआ करती जिनका नाम था जवंता बाई। तो जवंता बाई से वो शादी करते हैं मारना उदय सिंह जी। तो उनके जो पुत्र के रूप में जो होते हैं वो होते हैं अपने गेट वॉरियर ऑफ महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 में मारना होता है, जन्म होता है इसी फोर्ट पे। अभी जो चलेंगे उनका ऊपर रूम बना हुआ है, ओनली जो रूम है 9 मई के दिन ही खोला जाता है।
जब वत्ते मान के महाराणा आते पूजा पाठ के लिए, बाकी दिन बंद होता है। फिर कुछ समय बाद मानो ये सोचता है क्यों ना मेरे नाम से मैं एक राजधानी बसा दूँ। तो 50-59 में अपना जो एक राजधानी बसा जिसका आज भी नाम है उदयपुर। तो उदयपुर बाद में बसाया गया था। यहाँ से भी पूरा वॉल एक साथ नहीं देख पाता। 5 नंबर गेट दिख रहा है, विजयपोल गेट, वॉल वहाँ दिख रहा है। वहाँ से डाउन है कुछ जाके वहाँ पे ऐसे अप डाउन करके 36 किलोमीटर राउंड बनाता है पूरा वॉल का। এই যে ওয়ালটা বা যে প্রাচীরটা আপনারা দেখছেন এটি এশিয়ার দ্বিতীয় দীর্ঘতম প্রাচীর। এই প্রাচীরের পিছনের দিকের অংশটা আপনাদের পরে দেখাচ্ছি। कैनन हाउस उस दौड़ में फला किस लिए है? ये एलिफेंट्स के लिए था। एलिफेंट इतने दूर तक आ जाता? एलिफेंट्स चढ़ते कैसे थे? एलिफेंट को इतनी हाइट पर आने के लिए थोड़ा मजीदा स्टंट किया है। एक गेटेर एक একটা জন 4-5 জন মিলে বন্ধ করে। ये अपना 8 नंबर गेट है, 1 नंबर 8वां गेट है। इस गेट का नाम है चौगान पॉल। चौगान पॉल का मतलब ये होता है जितना फ्लैट एरिया होता है ना मेवाड़ के अंदर उसको चौगान ही बोलते हैं। इसलिए 15वीं सेंचुरी कुंभाजी कालिंग में पूरा फ्लैट एरिया था, ग्राउंड एरिया। यहाँ पे राजा के बच्चे यूज करना सीखते यहीं सीखते थे, इसलिए इस गेट का नाम भी पड़ गया चौगान पॉल, फ्लैट एरिया हॉल। ये किला का एक ही फ्लैट एरिया है। ये जो कैनल सिगरी है ये 1884 में लाई गई थी महाराणा फतेह सिंह जी टाइम पे, ओनली डेकोरेशन पर्पज से। और कैनल का कोई यूज़ नहीं होता, उसमें 1884 में लाई गई थी। पीछे जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कुंभा पैलेस है, राजा पार्ट है, रानी सेक्शन है। इसका नाम है पागड़ा पॉल। पगड़ी एक्सटेंड करके सारे गेस्टों को अंदर भी रहता था। अब गेस्ट आके उनकी वीआईपी पार्किंग होने से घोड़ा कांस्टेबल हुआ था गेस्टों के लिए, वहाँ उनको रोक के वहाँ यहाँ से पैदल लेके पार्टी का सौर करके अंदर लिया जाता था। अब कुंभाजी ने 15वीं सेंचुरी में यानी कुंभाजी कालिंग में इतना हाइट पे फोर्ट तो बना दिया उन्होंने, पानी का क्या करेंगे। तो पानी के लिए उन्होंने 15वीं सेंचुरी में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण लिया। बारिश का जो पानी है हार्वेस्टिंग करते इस टाइम में गिरा देता था, इतना बड़ा टैंक बना के बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। अब इस पानी को आपको पीना भी था, पीने के लिए करना था फिल्टर, तो यहाँ पानी को फिल्टर किया जाता था। ये फिल्टर प्लांट है, नेचुरल फिल्टर होता था। 3 स्टेम सबसे पहले आता था कोयला, बीच में स्टोन और लाइम स्टोन, 3 स्टेम में ले जमा के पानी को क्लीन करते थे। फिर यहीं से मिट्टी के जड़ों से भर के राजा रानी के सेक्शन पहुंचे, इस वजह से पानी को फिल्टर किया था। अब ये बाहर 2 पार्ट देख रहे हैं, ये अपने गेट भी योद्धा जो थे महाराणा प्रताप उनका बर्थ पैलेस है। ये 9 मई 1540 में ये उनका जन्म होता। ओनली जो रूम है 9 मई के दिन खुल रहा है, ये पार्ट उनका बर्थ पैलेस है। अब अपन का लिविंग एरिया में आ गए हैं। तो ये उस समय का राजाओं के घोड़ों का अस्तबल था, तो राजा घोड़ों को एक साथ यहाँ रखा जाता है उस समय। अच्छा। अब चलेंगे सबसे ओल्डेस्ट पैलेस आएगा अपना कुंभा पैलेस 15वीं सेंचुरी का। इसी के अंदर एक टेंपल भी है, नवदुर्गा चामुंडा माता का मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर एक देवी का मंदिर है, आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्विच खोलना होगा, अंदर जाकर दर्शन करते हैं। पता बर्थ पैलेस से या 9 मई 15 जन्म हुआ था माना पता इसी रूम में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का जी। अब ये जो एरिया देख रहे हैं उससे पहले मतलब फ्लैट एरिया हुआ था महाराणा कुंभा के टाइम पे 15वीं सेंचुरी में। फिर 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह और आते हैं, फिर ये पैलेस बनाते हैं। पूरा जो पैलेस देख रहे हैं नया बनाते हैं पार्ट पूरा। 1884 से इसको पार्ट को स्टार्ट करा था बनाने के लिए और 1930 लास्ट बना दिया। टोटल इस पैलेस को बनाने लग गए थे 45 ईयर, 45 साल। इसमें 2 पार्ट, एक राजा पार्ट एक रानी सेक्शन है। राजा पार्ट बंद है और रानी वाला पार्ट खुला हुआ है। अभी इस पैलेस का जो नाम है बादल पैलेस नाम है। बादल पैलेस की नाम इसलिए जब बारिश का टाइम होता है ना तो इतना क्राउड हो जाता है कि आपको कुछ भी नहीं दिखता है व्यू, इसलिए इसका नाम पड़ा बादल पैलेस। ये 19वीं सेंचुरी का पैलेस है, 100 ईयर ओल्ड। तभी राजा पार्ट तो बंद है और रानी वाला पार्ट खुला। এই যে এইখানে যে জায়গাটাতে আমরা যাচ্ছি এই দিকটাই এইখানটাই হচ্ছে বিখ্যাত রাজা মহারাণা প্রতাপের জন্মস্থান। এই যে এই ঘরের ভেতরেই
আমরা ভিতরে ঢুকতে পারিনি। এখানে বিখ্যাত রাজা মহারানা প্রতাপের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান। यहाँ से यहाँ 45 स्टेप्स है, सिर्फ बच्चा ऊपर एक व्यू है टेरिस में। এই যে এবার আমরা পৌঁছে গেছি ফোর্টের একদম উঁচুতে, মানে সবথেকে উঁচু জায়গা যেটি, সেখানে পৌঁছে গেছি। চলুন এখান থেকে আমি প্রাচীরের পিছনের দিকের অংশটি দেখাই। ওই দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা প্রাচীর, কত দীর্ঘ। এরকমভাবে 36 কিলোমিটার জুড়ে এই পাঁচিলের অবস্থান। রাজস্থানে আরও অনেক ফোর্টের চারদিকে এরকম প্রাচীর আছে, তবে এইটি ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক বন্ধুরা, আমাদের ফোর্ট ঘোরা হয়ে গেল। এবার আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে যাব এবং ওই যে প্রাচীরটি আছে, প্রাচীরের উপরে উঠবো, আর একটি মন্দির আছে, মন্দিরে যাব। ये अपना शिव टेम्पल है। 1458 में मारना कुंभा ने शिवलिंग कितना मिली। शिवलिंग का जो साइज है था 4.5 फीट की, यानी मारना कुंभा की हाइट क्या हुई। अभी शिवलिंग का जो साइज है 4.5 फीट का शिवलिंग है और मारना कुंभा की हाइट थी 8.5 फीट, यानी 8.5 फीट के मारना कुंभा थे। तो बेटे बेटे दूल्हा जलाभिषेक करते। तो पैसा दाও তো, ভেতরে যাব তো। যাই হোক, এবার আমরা এই বিখ্যাত প্রাচীরের উপর উঠে যাবো আস্তে আস্তে। প্রাচীরটা আপনাদের দেখাবো। প্রাচীরটি অনেক চওড়া, এই দেখুন কত চওড়া প্রাচীর। এখান থেকে ঘোড়াও দৌড়াতে পারতো, আর এখান থেকে ফোর্টের ভিউটা খুব সুন্দর আসে। যাই হোক, এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, ভালো লাগলে বলবেন, আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।